Hello students, welcome to Educate. Today we will be moving on with the second part of your class 11th NCERT History. Chapter 5 Changing Cultural Traditions. Up until now हमने देखा था printed books, humanism, realism and different studies of humanities being inculcated in Europe. Printed books, Bible being printed now, and the abolition, somewhat in a way a social change with respect to feudal culture or the longer history of feudalism. But now we had also learned about the position of women in families of merchants, however, was somehow different. वो कैसे? शॉपकीपर्स जब चले जाते थे तो women घर का ध्यान रखती थी और बिजनेस की भी देख रेख किया करती थी, रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेट्रा. For example, the early death of a merchant compelled his widow to perform a larger public role than was in the case of aristocratic families. तो जो वर्किंग क्लास थी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट समय था, वो डिफरेंट अप्रोच के साथ चलते थे और वहाँ पे विमेन थोड़ी ज़्यादा एक्टिव थी. Few women were very creative and sensitive about the importance of humanist education. For example, Venetian Cassandra Fidel एक बहुत बड़ी फिलोसोफर रही. Even though the study of letters, promises and offers no reward for women and no dignity, wrote the Venetian Cassandra Fidel. And this was written in the late 16th century and the early mid 16th century and late 15th century के बीच में. Every woman ought to seek and embrace these studies. She was a handful of women who questioned the idea that women were incapable of achieving qualities of a humanist scholar. ये चीज़ भी चेंज हो रही थी. फिडेल्स की जो राइटिंग थी वो फोकस मेनली रखते हैं रिगार्ड फॉर एजुकेशन, की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी उस समय पे. खास करके many of the Venetian women writers would criticize the Republic for creating a highly limited definition of freedom that favored the desires of men over those of women. एक और ऐसी बहुत फेमस लेडी थी, मार्चेसा ऑफ मांटुआ, इजाबेला दिएस्टे, जो कि लेट 15th सेंचुरी से लेकर के अर्ली 16th सेंचुरी के बीच में थी. शी रूल्ड द स्टेट while her husband absent, and the court of Mantua was a small state was framed for its intellectual brilliance. जो विमेंस की राइटिंग थी उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उनकी एक डेडिकेशन और कन्विक्शन ये शो करती है कि उनके पास इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर भी होनी चाहिए, एंड द पावर टू एजुकेशन एंड हैव एन आइडेंटिटी. ये अधिकतर जो राइट्स थे आदमियों के पास थे, बट इक्वली विमेन के पास भी होने चाहिए. प्लीज रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज फिलोसोफर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाल्थाजार कास्टिलियन, ऑथर एंड डिप्लोमैट, रोट इन हिज बुक द कोर्टियर. उन्होंने लिखा है, होल्ड दैट वुमन शुड नॉट इन अ वे रिजेंबल अ मैन एज रिगार्ड्स ways, a manner's gestures and bearing, just as to think they're very fitting that a man should display a certain robust and sturdy manliness. So it is well known for a woman to have a certain soft and delicate tenderness. एक बहुत ज़्यादा patriarchal और एक बहुत ज़्यादा restrictive idea है. For I consider many virtues of the mind are necessary to a woman as to a man, as it is to be of good family, to shun affection, to be naturally graceful, to be well-mannered, clever and prudent, to be neither proud, envious or evil tongue, nor vain, to perform well and gracefully the sports suitable for women. तो इस चीज के कुछ लोग अगेंस्ट भी थे, जो नई फिलोसफीज आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन. ऑलराइट, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि कैथोलिक चर्च जो कि इतनी ज्यादा एक पावर होल्ड करता था, उसकी पावर शिफ्ट कैसे हो रही थी, क्योंकि आज की डेट में जो इंग्लिश रॉयल फैमिली है, किंग चार्ल्स इज द हेड ऑफ द ब्रिटिश चर्च. But at the same time, how was this made possible? Because actually it was the other way around in the past. वो कैसे? ट्रेड, ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स ने बहुत ज़्यादा लिंक किया था इटालियन टाउन्स को और बाकी दुनिया के पार्ट्स से. तो जो नया कल्चर था वो बहुत ज़्यादा एडमायर्ड था और वो काफ़ी लोग इमिटेट भी किया करते थे, और जो एजुकेटेड थे और जो वेल्दी थे वो इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से एम्यूलेट करने की भी कोशिश करते थे. वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडियाज फिल्टर्ड डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन हु आफ्टर ऑल कुड नॉट रीड और राइट, क्योंकि सब लैटिन में होता था. 15th और 16th सेंचुरीज में काफ़ी स्कॉलर्स नॉर्दर्न यूरोप और सदर्न यूरोप की भी यूनिवर्सिटीज़ में
ह्यूमनिस्ट आइडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। खासकर जो इटालियन कॉलीग्स थे वो बहुत ज़्यादा क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट अलॉन्ग विद फिलोसफीज लिटरेचर उसको पढ़ा करते थे विद द होली बुक्स ऑफ क्रिश्चियंस, उसे भी स्टडी किया जाता था एक्सटेंसिवली। बट अनलाइक इटली where professional scholars dominated the humanist movement, in North Europe humanism attract many members of the church। जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज है नॉर्दर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा उसको इनकलकेट किया गया। They called on Christians to practice religion in the way laid down in the ancient text of the religion, discarding any unnecessary rituals which they condemned as later additions to a simple religion। कि बेसिकली बाइबल को फॉलो करें और जो कैथोलिक चर्च से नए रिचुअल्स निकले थे उसको थोड़ा डिस्कार्ड किया जाए, बिकॉज दे कंसिडर्ड इट टू बी एन एड ऑन टू द एक्चुअल बेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऑल्सो उनका एक रेडिकल व्यू ये भी था कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फ्री और रैशनल एजेंट्स होते हैं। हर किसी के पास रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, रीजन करने की एबिलिटी सबके पास होती है, विच इज ऑल्सो नेसेसरी एंड मेक्स अस ह्यूमन एट द सेम टाइम। बाद में फिलोसोफर्स इस बात पर रिटर्न करते हैं बार बार और इंस्पायर करते हैं बिलीव कि जो डिस्टेंट गॉड है वो बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं करते, एंड distant God created but allowed him to compete freedom to his freely in pursuit of happiness here and now। प्रेजेंट में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस मोर इंग्लैंड में और एरास्मस जो कि हॉलैंड में थे, उन्होंने ये सोचा कि जो चर्च है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनता जा रहा है जो बहुत ज्यादा ग्रीड और अंधविश्वास पे चलता है और लोगों से पैसे ठगता है और लोगों से पैसे लूटे जाते हैं। वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंसेस, जो कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता था और उसे खरीदने से चर्च ये बोलता था आप इस डॉक्यूमेंट को खरीदोगे इंडल्जेंसेस को तो आपने जो भी सिन किया, जो भी पाप करे हैं वो साफ हो जाएंगे, तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। Christians came to realize from printed translations in the Bible in the local language, क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस ग्यूटेनबर्ग प्रेस आ चुका था, कि उनके रिलीजन में ऐसी कोई प्रैक्टिसेस ओरिजिनली तो थी नहीं जो बाइबल में लिखी हो। यूरोप के ऑलमोस्ट हर पार्ट में पेजेंट्स जो हैं रिबेल करने लगे चर्च से जो टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे उसके अगेंस्ट। While the common folk resented the extortions of churchmen, princes found the interference in the work of the state irritating। अब धीरे धीरे रॉयल फैमिलीज भी उनसे इरिटेट हो रही थी बिकॉज उनको कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ द चर्च इन द running of the empire, they did not actually take it too well। They were pleased with the humanists point out that the clergy's aim to judicial and fiscal powers originated from a document called the Donation of Constantine। ये डोनेशन दिया जाता था जिसका नाम था डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से है जो कि इस्तांबुल का पुराना नाम है। एम्परर कॉन्स्टेंटीन जो कि रोमन एम्परर थे उससे नाम होता है और ये उन्होंने ही इशू किया था while he made Catholic Christianity the official state religion। जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को पॉइंट आउट कर पा रहे थे कि हाँ ये चीज़ जेन्युइन नहीं है और ये बाद में ऐड ऑन करी गई है और ये गलत है। 1517 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ यंग जर्मन मंक कॉल्ड मार्टिन लूथर, लूथरन या फिर प्रोटेस्टेंट जो फॉर्म है क्रिश्चियनिटी का यहीं से निकला था, लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च, argued that a person did not need priests to establish contact with God। He asked his followers to have complete faith in God, or faith alone could guide them to the right life and entry into heaven। This movement called the Protestant Reformation, very important। इसमें जो चर्चेस थे खासकर की जर्मनी और स्विट्जरलैंड में से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, ब्रेकिंग द कनेक्शन विद द पोप एंड द कैथोलिक चर्च। अब कैथोलिक चर्च से वो टूट चुके थे। इन स्विट्जरलैंड लूथर्स आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड बाय उल्रिक स्विंगली जो कि एक और उनके अंडर ही काम करते थे, एंड लेटर बाय जॉन कैल्विन। और बाद में जो खास करके मर्चेंट्स थे, रिफॉर्मर्स थे, उनके बीच में ये आइडियाज बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग गए थे। उनकी जो अपील्स थी टाउन्स में, वाइल इन रूरल एरियाज द कैथोलिक चर्च मैनेज टू रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस। रूरल एरियाज में अभी भी कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा था। काफी जर्मन रिफॉर्मर्स जैसे कि एनाबैप्टिस्ट्स वो और ज्यादा रैडिकल थे अपनी अप्रोच में एज कंपेयर टू इवन मार्टिन लूथर।
उन्होंने सैल्वेशन का जो आइडिया था वो ब्लेंड कर दिया था बाय एंडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन, की किसी भी तरीके की सोशल ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते थे कि सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल इज इक्वल, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस एंड हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट्स। उनको टैक्स देना जरूरी नहीं था और उनको हक था अपना प्रीस्ट चूज करने का। पेजेंट्स को ये आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अंडर द फ्यूडल लॉर्ड्स। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं एक इंग्लिश लूथरन जिसने की बाइबल ट्रांसलेट करी थी इंग्लिश में इन 1506, उसने प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफेंड किया था और उनका नाम था विलियम टिंडेल, strong advocate of Martin Luther. So before we move on to this text, I hope you understood the chapter here till now. This was the second part of your class 11th NCERT history chapter or theme 5, changing cultural traditions. If you have not understood any bit, feel free to rewind or visit the previous part of this chapter, and make sure you like, share, subscribe, and also comment on this video before you leave. Thank you.